ابھی عمران خان صاحب نے ایک مفصل خطاب کیا ہے اور اپنے تاثرات اور اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. قوم کے سامنے اس کو رکھا گیا. ہمارے علم میں ہے کہ ان کی جو ان کا خطاب تھا وہ اس میں وہ بلیپس آتے رہے اور اس تسلسل سے بات سامنے نہیں پہنچ سکی جو اندازہ ہے. لوکل میڈیا پر بے پناہ دباؤ بھی ہے، مشکلات بھی ہیں، ہمیں اس کا احساس ہے اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن جو ان کی گفتگو ہے وہ لائیو سٹریم ہوئی اور ابھی ان کی گفتگو ختمی ہوئی تھی تو 20 لاکھ لوگوں نے ان کا خطاب سن لیا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے. 20 لاکھ لوگوں تک جو ان کی بات 2 ملین ویوز آ چکے تھے. تو آج کے زمانے میں میڈیا کو جتنا بھی روکا جائے یا اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں بات پہنچ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مفصل بیان کے بعد میں کوئی اضافہ تو نہیں کر سکتا. کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. یہ سارا واقعہ جو ہے پنجاب میں ہوا تو اگر نون لیگ کی گورنمنٹ ہوتی تو میرے خیال میں سب سے پہلے مطالبہ وزیر اعلیٰ کے استعفے کا ہونا تھا اور پنجاب پولیس اس کی سیکیورٹی کی تمام تر ذمہ داری ان پر تھی. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سنا ابھی تک ایف آئی آر بھی درج نہیں ہو سکی. پولیس کیوں نہیں ایف آئی آر؟ دیکھیے، جو ایف آئی آر درج کروانا اگریوڈ پارٹی کا ایک بنیادی حق ہے اور ہماری کوشش ہے کہ وہ ہو اور پھر انویسٹیگیشن ہو اور انویسٹیگیشن میں حقائق سامنے آ جائیں گے اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہوگا اور جو صحیح نہیں ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن ایف آئی آر کے راستے میں رکاوٹ میں سمجھتا ہوں اصولاً نہیں ہونی چاہیے. ہم منتظر ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے اور اگر کمپلیننٹ کی خواہش کے باوجود ایف آئی آر رجسٹر نہیں کی جاتی تو پھر لیگل آپشنز اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں. بتائیے گا کہ اب کنسنٹریشن کافی بڑھ گئی ہے پی ٹی آئی کے درمیان بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان اور جس طرح سے جلاؤ گھراؤ ہو رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی امید کی کرن ہے کہ کوئی مذاکرات؟ سر یہ بتائیے گا کہ وزیر داخلہ صاحب رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بار بار بتایا کہ لانگ مارچ میں جو راستوں سے آنا ہے وہاں پر تھریٹ فلاں جگہ پر ہیں اور اس کے باوجود یہ لانگ مارچ جاری رہا. پنجاب کے اندر حکومت کی اتحاد کی ہے. دیکھیے لانگ مارچ کا آغاز ہوا لاہور سے 28 اکتوبر کو. 7 روز تک وہ چلا اور پرامن رہا. جو ہمارا اوریجنل پلان تھا اس اوریجنل پلان کے تحت تو جمعے کے روز اسلام آباد پہنچنا تھا نا. وہ تو لوگوں کا جو ایک ہجوم تھا سامنے اور پھر سیکیورٹی کنسیڈریشنز کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ ہوا کہ رات کے اندھیرے میں آگے نہ بڑھا جائے اور پھر لوگ پیدل چل رہے تھے. تو پیدل چلنے کی کیپیسٹی ایک عام انسان میں کتنی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، وہ کچھ کلومیٹر سفر کر سکتا ہے نا. تو 15 کلومیٹر پر دن پر ڈے تو سفر کیا لیکن اس سے زیادہ تیز رفتاری سے آگے بڑھنا ممکن نہیں تھا. پرامن رہا اور واضح طور پر ہمارا اعلان تھا کہ ہمارا مارچ پرامن رہے گا. اب یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی دہشت گرد کی کارروائی تھی. ہم نہیں سمجھتے. ہماری رائے میں یہ ایک قاتلانہ حملہ تھا. یہ ایک منصوبے کے تحت عمران خان کو، جس کو سیاسی میدان سے ہٹانے کی کوشش کی گئی اور نہ ہٹا پائے،
लोगों को बहकाने की कोशिश की गई, मुख्तलिफ़ किस्म के ख़बरें शोशे छोड़कर लोगों के जहनों में एक अभाम पैदा करने की कोशिश की और हुकूमत वक्त नाकाम हुई। लोग इमरान खान के बयानिए से जुड़ गए, उन्होंने कबूल कर लिया। इसे कबूल नहीं किया, फिर जब पॉलिटिकल नाकामी हुई तो हम समझते हैं कि उनको फिजिकली एलिमिनेट करने की कोशिश की गई। इतना बड़ा सानिया हो गया है और अभी तक आपकी पंजाब में आपकी हुकूमत है, अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई, तो तहकीकात कैसे होंगी? पहली बात देखिए FIR कोई एप्लीकेशन जमा करवाई? हमारे जो पटिशनर हैं ज़ुबैर रियाजी साहब, वो बाकायदा गए, मुतल्लिका थाने में गए और उन्हें FIR दर्ज कराने की कोशिश की। मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक नहीं हुई, जुस्तजू जारी है। हम कोशिश करते रहेंगे और हमें इल्म है मुश्किलात हैं, लेकिन कोशिश जारी रहेगी। इतना बड़ा सानिया हुआ, इस पे जरा ये बताइएगा कि अभी एक SHO उधर का अमला जो है मुअत्तल किया गया, इतनी हाई प्रोफाइल ये केस था, वीडियो जो है वो पब्लिश की गई और उसके बाद देखिए आई थिंक इसके लिए बेहतर जवाब तो जो कोई पंजाब हुकूमत का कोई जो हमारा इम्पोर्टेंट मेंबर है वो दे सकता है कि मेरी इत्तला के मुताबिक आज काबीना का इजलास भी हुआ। यकीनन काबीना के इजलास में ये मसला ज़ेर बहस आया होगा, पुलिस की कारकर्दगी के बारे में भी बात आई होगी, IG और वहाँ की जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे या लैप्सेस थे वो ज़ेर बहस आए होंगे। देखिए मिसाल के तौर पे गुजरावाला मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हम शहर से गुजरे, मैं खुद कंटेनर पे मौजूद था, पुलिस का इंतज़ाम बहुत अच्छा था। देखिए जब हम जब नुक्ताचीनी करते हैं ना तो किसी की अच्छाई को हमें रद्द नहीं करना चाहिए। वहाँ जो पुलिस ने जो परफॉर्म किया, जो सिक्योरिटी का हिसार था, जिस तरह वो लोगों के साथ चल रहे थे, रास्ता बना रहे थे, बहुत अच्छा था। और खान साहब ने एक नहीं एक से ज़्यादा मरतबा पुलिस ऑफिसर्स का और जवानों का शुक्रिया अदा किया, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन वज़ीराबाद में बकौल उसके बाद मैंने ये नहीं कहा और आप जुमला मेरे मुंह में मत डालिएगा। देखिए ये मुनासिब नहीं है, मुझे मालूम है कि आप एक अपनी मर्जी का बयान लेना नहीं, ऐसी बात नहीं। बात ये है कि पंजाब गवर्नमेंट यकीनन एक जिम्मेदार गवर्नमेंट है और वो अपनी जिम्मेदारियों से आशना है, वो इन चीज़ों को यकीनन देख रही होगी और किसी नतीजे पे पहुंचेगी। मुझे भी करने दें। पूरा मैंने एहतजाज जो है आपकी तरफ से कॉल किया गया, जैसे ही एहतजाज जो है वो सारे बाकायदा तौर पे आग लगाई गई, गवर्नर हाउस के कैमरे तक तोड़ दिए गए, गवर्नर हाउस के दरवाजे को भी आग लगाई गई, कोई लीडरशिप आपकी वहाँ पे मौजूद नहीं थी। तो क्या कारकुनान जो है आपको उनको गाइड करें या वो खुद ही अपने तौर पर? देखिए जब लोगों में गम गुस्सा होता है भैया तो इस किस्म का रिएक्शन एक गैर मुतवक्के नहीं है, लेकिन पार्टी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पुरअमन एहतजाज की हैं। हम कह रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है और उस आईनी हक को इस्तेमाल करते हुए हम पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। हमने तशद्दुद एहतजाज करें, पुरअमन तोड़ फोड़ नहीं करनी। हमने जैसे मेरे इल्म में बात लाई गई कि अपना वहाँ मुल्तान में बहावलपुर बाईपास पर कुछ एम्बुलेंसेस थी, वो जब रुकावट थी सड़क में तो फौरी तौर पर हिदायत दी गई और फौरी तौर पर उन एम्बुलेंसेस के लिए जगह बनाई गई। ठीक है ना जी, हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, एट द सेम टाइम अपना एहतजाज का हक भी रखना चाहते हैं। कारकुनान को क्या कहेंगे जिन्होंने गवर्नर हाउस के दरवाजे को आग लगाई और कैमरे जो है तोड़े हैं? देखिए अर्ज ये है जब आप एक पार्टी के सरबराह पर कातलाना हमला करेंगे तो क्या आप तवक्को करेंगे कि वो कारकुन मुश्तैल नहीं होंगे? एक जज्बात हैं और जज्बात में अगर लोगों ने ऐसा किया है तो काम है उन जज्बात को ठंडा करना।
और उनको समझाना, उनको बताना, ठीक है ना जी। अगर आप एक सेकंड ठहरिए, जब जज्बात लोगों के मजरूह हों और उसके ऊपर जो बयानबाजी की गई है नून की क़यादत की तरफ से, तो वो ज़ख्मों में नमक पाशी की गई है। आप बताएं उससे जज्बात उभरेंगे या नहीं उभरेंगे? मैं समझता हूं कि इस वक्त गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए जा रहे हैं, बिला वजह मुश्तइल और जिनके जज्बात मजरूह हैं उन लोगों को मजीद मुश्तइल किया जा रहा है, और ये हुकूमत जानबूझ के कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जांच कब तक जारी है? पंजाब और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दरमियान क्या FIR में कोई इख्तिलाफ है? दूसरा कि क्या ये जवाब मैं पहले दे चुका हूं, अब रिपीट कर रहे हैं वही सवाल एक और अंदाज में। इमरान खान यहाँ से है, क्या आवाम सड़कों पे रहेगी? क्या इमरान खान कॉल देंगे इनको रोकने के लिए या नहीं? देखिए, प्रोटेस्ट बिल्कुल करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट बिल्कुल करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेंगे और जारी रहने चाहिए जब तक कि हुकूमत कोई मुनासिब कदम नहीं उठाती। ये बताइए, एक पार्टी के सरबराह पर कातलाना हमला हो, अल्लाह के करम से वो बच जाए, और आप कहते हैं कि उसकी जमात और आम शहरी एहतजाज भी ना करे? ये कैसी मतलब है, गैर मंतकी सी बात है ना। एहतजाज एक नेचुरल चीज थी जो हुई है, और लोगों के जज्बात हैं। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे कदम उठाए जिससे कि लोग जो मुश्तइल हैं वो मुश्तइल न रहें और वो ठंडे हो जाएं। हुकूमत अगर ऐसे इक़दामात करेगी कि FIR को रास्ते में रुकावट, मीडिया को गैग किया जाएगा, रुकावटें डाली जाएंगी, ठीक, और किस्म किस्म के बयानबाजी की जाएगी, लोगों को मजीद मुश्तइल किया जाएगा, तो उससे मामलात बताइए बेहतर होंगे या बिगड़ेंगे?